Hello, good afternoon, everyone. Myself Pulkesh Prajapati from Gujarat Science City. As you know, everyone, today is 2nd December, and we observing today is the National Pollution Control Day. As you know very well, today in 1984, we all know about the Bhopal gas tragedy. So today we are celebrating and observing the National Pollution Control Day. The aim of the day is to raise awareness about the problems of increasing pollution and to commemorate the thousands of people who lost their lives in the Bhopal gas tragedy in 1984. So, in this occasion, Gujarat Science City organizing a special webinar, come live interactive session on the National Pollution Control Day. Today, our prominent expert, Sri Dr. Narmad Prasad Shukla sir. Sir, welcome. Thank you. I have some small brief about the sir. So today our expert is Dr. Narmad Prasad Shukla sir. Sir is an expert appraisal committee member, Ministry of Environment and Forest, Government of India. Sir is a former chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board. Also, sir has a total 35-year experience in research and development. Sir is a 14-year as a project director, Madhya Pradesh Council of Science and Technology, Bhopal. So, also sir have a administrative and management experience last 25 years. So today we have a good opportunity to attend the session about the pollution control and today's session. So I request to sir for session. Sir, please. Thank you very much, Pulkesh ji. Thank you, sir. That first slide. And you know that whatever Pulkesh ji said about this National Pollution Control Day, and it is all because of Bhopal gas tragedy, Bhopal gas disaster, and because of that, and you are aware that for this Bhopal gas tragedy. So, because of air pollution, thousands of deaths occurred during that time. So, I will talk today on air pollution and human health. And next slide, please. This National Pollution Control Board, in fact, Bhopal gas disaster happened on 2nd December night. In fact, it was 2nd and 3rd December in between. In the night, there was a gas leak. You are aware that, and that gas was that methyl isocyanide, MIC. That you know that memory of people who lost their lives in Bhopal gas calamity, it is being observed, and as Pulkesh ji said that it was 2nd, 3rd December 1984. Many people died due to poisonous gas, methyl isocyanide. And in fact, there was other gases also, I think, involved in that tragedy. That it is because of, and mainly it is because of MIC. हेलो सर, एक्सक्यूज मी. यस सर आप थोड़ा हिंदी में भी बात कीजिएगा क्योंकि हमारे कुछ लोगों का रिक्वेस्ट है सर. प्लीज सर, प्लीज टॉक इन इंग्लिश. जी, थैंक यू. आपको मालूम है भोपाल गैस जब ये लीक हुआ, मिथाइल आइसोसाइनाइड 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच में, तो हजारों लोगों की डेथ हुई. और अभी ऑफिशियली आई वाज सीइंग दैट करीब 3,500 प्लस. क्या हो गया? यस सर, कंटिन्यू सर. ये डिस्कनेक्ट हो गया था. नहीं सर, चालू है, प्लीज सर. हाँ, तो ये स्लाइड नहीं आ रही है अंकित?
Yes. So Bhopal, that in the media that there are reports. In fact, 10,000 से ज्यादा लोग इस ट्रेजडी में, उस भोपाल गैस ट्रेजडी में 10,000 से ज्यादा लोग की डेथ हुई है और आज भी लोग सफर कर रहे हैं। उसके जो आफ्टर इफेक्ट हैं एयर पोल्यूशन के और जो हेल्थ पर उसका इम्पैक्ट आया लोगों के ऊपर, तो आज भी लोग बहुत सारे कारण सफर कर रहे हैं। तो भोपाल गैस ट्रेजडी कंसीडर्ड एज one of biggest industrial pollution disasters in the world. Next, please. And objectives जो आज हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मना रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्चुअली हमें नहीं कहना चाहिए मना रहे हैं, हम जो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, इट इज बिकॉज टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, to prevent the pollution produced by industrial process or human negligence, to make people and industries aware about the importance of pollution control acts. इन लोगों में जागरूकता बढ़े पोल्यूशन के लिए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए, जनरल पोल्यूशन के लिए। पोल्यूशन एक्ट क्या है, आज हमारे यहाँ संविधान में क्या प्रावधान है, इसके लिए हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। सर पीपीटी नहीं दिख रहा है। जहां तक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की ग्लोबल अवेयरनेस है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1972 में स्वीडन में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन जनरल असेंबली के तत्वाधान में 1972 में देयर वाज अ स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। उसमें ये निर्णय लिया गया, उसके पहले हमने ऑफिशियली कभी एनवायरनमेंट के बारे में सिस्टमैटिकली सोचा नहीं था। तो 1972 ऑनवर्ड्स हमने डिसाइड किया कि हम नेशनल एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाएंगे। और आप जानते हैं 5 जून को हर वर्ष नेशनल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। और इसका उसमें स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये रिजॉल्व हुआ, मैन हैज द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी एंड एडिक्वेट कंडीशंस ऑफ लाइफ इन एन एनवायरनमेंट ऑफ क्वालिटी दैट परमिट्स अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड वेल बीइंग, एंड मैन बियर्स ए solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations. Next, please. The Stockholm Declaration was adopted by the UN General Assembly on 15 December 1972, and जैसा मैंने आपको बताया कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया गया यूएन जनरल असेंबली में। तो all the countries are required to reaffirm on that day their pledge to conserve and improve the environment. This applies to all of us. हम सबके लिए है ये। और उस समय जो वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस थी, उसमें लगभग 113 देशों ने और 400 नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने भाग लिया था, और सब ने ये प्रण किया कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कार्य करेंगे, हम पोल्यूशन को कम करेंगे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। आपको याद होगा एट दैट टाइम मिसेस इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश की प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी थी, और उन्होंने उस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। और उसके बाद तुरंत बाद जब उन्होंने ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस और इसका सिग्निफिकेंस समझते हुए उन्होंने प्रोविजन किया रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट,
and provision were incorporated into the 42nd Constitutional Amendment Act passed in 1976. उन्होंने 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया, और दिस अपीयर्स एज आर्टिकल 48A in the chapter on directive principle of state policy, which reads as below: that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. Next, please. देखिए, ये जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि भारत के संविधान में भी हम प्रावधान करेंगे, और दुनिया में हमारा देश पहला देश है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ मीन्स राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी एंड इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ which go to make a man's life meaningful, complete and worthwhile. और जो 42वां संशोधन है 42nd Amendment of India's Constitution 1977 underscores the importance of green thinking, and following 2 articles were inserted. हमने उस समय से ग्रीन थिंकिंग के बारे में सोचना चालू करा, और इससे संबंधित संविधान में आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A(G) इंसर्ट किए गए। नेक्स्ट। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ, उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो ये है कि प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। ये आर्टिकल 48A का ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स है, और आर्टिकल 51AG के अनुसार it stipulates that it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forest, lakes, rivers, and wildlife, and to have compassion for living creatures. तो हमने पर्यावरण के लिए जागरूकता, पर्यावरण को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए हमारे यहां उपाय किए गए, और जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया पहला देश है जिसने अपने संविधान में ये प्रावधान किए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के। नेक्स्ट प्लीज। आज ये हमारी सबकी ड्यूटी है, ये चूंकि हमारे संविधान में प्रावधान है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित संरक्षित करें और किसी भी तरह की पर्यावरण को हानि से बचाएं। दैट सवाल उठता है कि पोल्यूशन क्या है, व्हाट इज पोल्यूशन। पोल्यूशन को डिफाइन किया गया है, इसको परिभाषित किया गया है। पोल्यूशन इज अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स लैंड, वाटर एंड एयर दैट एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, आवर प्रॉपर्टी, ट्रेड एंड कॉमर्स, industries, and the life of the desired species of plant and animals. This covers everything. Undesirable change in the quality of our environment is pollution. And हम आज ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, it was, ये जो परिणाम था यह वायु प्रदूषण का परिणाम था। तो what is वायु प्रदूषण? What is air pollution? आप देखें कि 1981 में इसके बाद आगे बढ़कर हमारे एक्ट लाया गया,
एयर एक्ट आया 1981 में, जिसको हम एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 कहते हैं। इसके पहले 1974 में वाटर एक्ट आ चुका था और 1981 में एयर एक्ट को लाया गया और इसके अनुसार एयर पोल्यूटेंट्स, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस इंक्लूडिंग नॉइज present in atmosphere in such concentrations as may be or tend to be injurious to humans, other living creatures, plants, property or the environment. ये सब एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये सब एयर पोल्यूशन के दायरे में आते हैं। एंड एयर पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट प्लीज। तो हम ये देखते हैं कि क्या बात है, हमारा आज स्ट्रेस एयर पोल्यूशन पे क्यों है? एयर पोल्यूशन पे हमारा स्ट्रेस, हमारा इतना ज्यादा अटेंशन क्यों होना चाहिए? वी कंटिन्यूअली, हम सांस लेते हैं, वी कंटिन्यूअली ब्रेथ एयर थ्रू आउट अवर लाइफ एट द रेट ऑफ 6 to 8 times पर मिनट। हम लगातार श्वसन के द्वारा हम श्वसन करते हैं, ब्रीथ करते हैं, और हम ब्रीथ में एयर को, जिसमें एयर में मुख्य रूप से ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वी ब्रीथ थ्रू द एयर combines with hemoglobin and is supplied to cells for intracellular respiration. Pollutants we breathe along with air may adversely affect the life process. तो हमारे जीवन के लिए, जैसा कि इससे स्पष्ट है कि जीवन के लिए श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, तो हम इस वायु के साथ वायु प्रदूषक जो हैं, जो पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको भी ब्रीथ करते हैं, वो भी हमारी सांस के साथ जाते हैं और जो हमारी जीवन प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। आप देखें कि एयर पोल्यूशन से दुनिया में 1930 ऑनवर्ड्स जो हमारे पास डाटा है, 1930 ऑनवर्ड्स आप देखें, बहुत सारी कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े डिजास्टर हुए हैं, बहुत सारी मृत्यु हुई है इन डिजास्टर में। दिसंबर 30 में देखिए बेल्जियम में 63 लाइफ और बहुत सारे अनगिनत कैटल्स, जानवर मर गए। अक्टूबर 48 में पेंसिल्वानिया, नवंबर 1950 में मैक्सिको में, दिसंबर 1952 में लंदन में, आप देखें लंदन में अगेन इन 1956 में 1000 से ज्यादा डेथ हुई हैं बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो दिस इज ऑल, इट इज ऑल वेरी क्रिटिकल एंड अलार्मिंग। आज हम एयर पॉल्यूशन पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि हमें इससे बचाव करना है, समाज में हमें जागरूकता लाना है। अगर समाज में जागरूकता आ जाएगी तो ये जो इतनी कैजुअलिटीज हैं, इतनी डेथ्स हैं, हम उनको रोक पाएंगे, हम इन एक्सीडेंट को रोक पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। आप देखें दिसंबर 1984 भोपाल, इसमें तो 3500 का फिगर है, पर अपुष्ट बहुत सारे अलग अलग जो मीडिया वगैरह की रिपोर्ट है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लगभग 10,000 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए और आज भी लोगों को भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से जो लोग जीवित हैं उनके ऊपर भी इसका असर है। आप ये देखें कि दिसंबर 1984 में भोपाल में, फिर अब इसी एयर पोल्यूशन की वजह से गल्फ वॉर में एयर पोल्यूशन की वजह से हजारों डेथ हुई हैं, पूरा उसकी हमारे पास जानकारी नहीं है, पर उनमें हजारों लाखों लोग हताहत हुए हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। आप देखें कि बिकॉज ऑफ टेररिज्म, एंड टेररिज्म में ये इस तरह के वेपन इस्तेमाल किए गए, केमिकल वेपन इस्तेमाल किए गए, एयर को पॉल्यूट करने वाले वेपन इस्तेमाल किए गए, और उसकी वजह से दुनिया में
हजारों लाखों मौत हो चुकी हैं। इससे हमें हमारे समाज को बचाना है। नेक्स्ट प्लीज। अब हम देखें कि ये एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेस क्या हैं, कहां से ये एयर पोल्यूटेंट्स आते हैं, ये जो वायु के प्रदूषक हैं वो कहां से आते हैं। आप देखें ये थर्मल पावर प्लांट पर्टिकुलेट मैटर्स, एसपीएम मतलब सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, और नॉक्स नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब पावर प्लांट से एमिट होते हैं। और थर्मल पावर प्लांट आज जो हमारी बिजली है, हमारी एनर्जी है, हमारी 60 से 70% हमारी निर्भरता थर्मल पावर प्लांट में है। सल्फ्यूरिक एसिड से SO2 का एमिशन होता है, उसी तरह सुपर फॉस्फेट से SPM एंड दूसरे प्रदूषक मिलते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो पार्टिकुलेट मैटर, SO2, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन होता है। कार्बन ब्लैक से SPM, SO2, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सभी एमिट होते हैं। ऑयल रिफाइनरी वायु प्रदूषण के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा एमिशन होता है। और न केवल सल्फर डाइऑक्साइड बल्कि SPM, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब शामिल होते हैं। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में उसी तरह आप देखें ये सब तरह के वायु प्रदूषक उधर वो मिलते हैं। कॉपर इंडस्ट्री में SPM, सॉक्स, नॉक्स, ये सब कॉपर इंडस्ट्री से भी, उसी तरह जिंक इंडस्ट्री में इस तरह के वायु प्रदूषक एमिट होते हैं और हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अप्रूवल देते हैं कोई साइट के, अब सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स में जैसा मैं आपको बताता था, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में आज हम इंडस्ट्रीज के साथ, इंडस्ट्री के बिना, उद्योगों के बिना रह भी नहीं सकते, पर हमें उद्योगों में ऐसी व्यवस्था करना है कि पोल्यूशन लेवल इतना कम हो कि हमारे स्वास्थ्य को कोई नुकसान ना हो। आयरन एंड स्टील में आप देखें सब तरह के प्रदूषक हैं, SPM, SO2, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। ब्रिक किल्न, ये जो ईंट बनाने के भट्टे हैं और ईंट बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण होता है, सभी तरह का प्रदूषण होता है। पेट्रोल, डीजल, ये वायु प्रदूषण के बहुत बड़े कारण हैं। जो व्हीकुलर वाहन से जो प्रदूषण होता है, वो वायु प्रदूषण में एक बहुत बड़ा हाथ इन वाहनों का है। इन पेट्रोल और डीजल की वजह से बहुत प्रदूषण होता है। तो अगर आप पेट्रोल, डीजल और वाहन में देखें तो सब तरह के, इवन लेड, हालांकि आज अनलेडेड पेट्रोल पंप में मिलने लगा है, पर लेड एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। तो देन कोल बर्निंग, अब जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो आयरन स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, और मुख्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में जो ये कोल बर्निंग होती है, इसकी वजह से कार्बन एमिशन और दूसरे सब तरह के एमिशन होते हैं, और ये हमारे को बहुत बड़ा नुकसान, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोल बर्निंग के अलावा वुड बर्निंग, लकड़ी के जलाने से भी बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। देन बायोगैस, देन LPG, this is all are causing air pollution. Next please. आप अब इनसे क्या, ये जो अलग अलग मैंने आपको बताए सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स और अलग अलग पोल्यूटेंट्स हैं, इनका क्या इफेक्ट होता है। आप देखें सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, आजकल सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर को दो हिस्सों में जाना जाता है, PM10, PM2.5। PM मीन्स पर्टिकुलेट मैटर। तो एडवर्स इफेक्ट ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जो पर्टिकुलेट मैटर, ये जो धूल, धुआं, इसके जो कण होते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को
हमारी आंखों की रोशनी को, एंड ना केवल हमारे मानव स्वास्थ्य को बल्कि हमारी खेती को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और कोरोजन ऑफ मेटल्स, इनकन्वीनियंस एंड एनॉयंस, ये बहुत तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर जो प्रदूषक, वायु प्रदूषक है, सफोकेशन कॉज करता है, एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, acute and chronic injury to plants, leaves, corrosion of metals, acid rains, आज ये सब तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं, ये सारी प्रॉब्लम सल्फर ऑक्साइड से होती हैं और हमारी खेती को नुकसान होता है। जो आपने नाम सुना होगा एसिड रेन, एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। उसी तरह हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोकार्बन्स का एमिशन होता है उद्योगों से, और हाइड्रोकार्बन कार्सिनोजेनिक मींस जो कैंसर काज करते हैं। इन हाइड्रोकार्बन्स के एमिशन से और जो हम वायु ग्रहण करते हैं श्वसन में, ये सब हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव करते हैं। इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, और ना केवल ह्यूमन स्वास्थ्य बल्कि हमारे प्लांट्स को, हमारी कृषि को, हमारी बागवानी को भी ये नुकसान को पहुंचाते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स जो स्मॉग, आपने नाम सुना होगा, ये स्मॉग, ये जो धुंध होती है जनरली ठंड के टाइम में, खासकर आपने मार्क किया होगा दिल्ली और सराउंडिंग एरिया में, ये जो स्मॉग है, स्मॉग इज स्मोक प्लस फॉग। तो स्मॉग जो है, इट इज आल्सो क्रिएटेड, एंड हाइड्रोकार्बन्स हैज द कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रिएटिंग स्मॉग। उसी तरह देखिए ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं, उसमें इरिटेशन ऑफ आईज एंड नोज, डैमेज टू प्लांट लीव्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स, एसिड रेन, स्मॉग, ये सब वजह बनते हैं ये नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जहरीली गैस होती है, causes headache, dizziness, nausea, competes with oxygen in respiratory metabolism। तो ये हमारे स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव डालते हैं ये सब प्रदूषक। नेक्स्ट प्लीज। उसी तरह ओजोन, ऑक्सीडेंट्स में ओजोन अगर हम ले तो डिस्टर्बिंग लंग फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, इंड्यूसेस कफिंग, इरिटेशन ऑफ आईज, नोज एंड थ्रोट, डिसकलर्स लीव्स एंड ऑब्जेक्ट्स, फॉर्म्स स्मॉग। हाइड्रोजन फ्लोराइड, respiratory disease, general irritation. Then hydrogen sulfides, odor nuisance, irritation of respiratory system. Chlorine, irritation of eyes and nose and respiratory system, respiratory diseases. Then lead, हम आप पहले भी बात कर चुके हैं, lead का प्रदूषण कैंसर को कॉज कर सकता है। ये इतना खराब प्रदूषक है कि ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इट कॉजेज इम्पोटेंसी, कॉजेज मेंटल रिटार्डनेस। तो दिस इज ऑल बैड इफेक्ट वी आर हैविंग बिकॉज ऑफ दिस एयर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूटेंट्स। नेक्स्ट प्लीज। अब आप देखें कि आज कितनी खराब स्थिति है। ये फिगर हालांकि पुराने फिगर हैं, मैं आपको हमारे देश के अलग अलग शहरों में, आप अलग अलग शहरों में देखें, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कानपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पटना, आप देखें मॉडरेट एयर पोल्यूशन की स्थिति कितनी खराब है। तो एसपीएम की कंडीशन देखें जो 71 और 140 के बीच में मॉडरेट समझी गई है, और हाई 141 और 210 के बीच में हाई और क्रिटिकल 210 से ऊपर। और आप ये देखें कंटिन्यूअसली इतनी हाई काउंट है। एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा है, एम्बिएंट एयर पोल्यूशन इतना हाई है
कि ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य को कितनी हानि हो रही है। और जो ये अननेचुरल डेथ्स हैं, ये अननेचुरल डेथ्स इस एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी अननेचुरल डेथ होती हैं। हमने ये कुछ फिगर दिए हैं, हालांकि ये पुराने फिगर हैं, आज की स्थिति और बिगड़ी हुई है। नेक्स्ट प्लीज। अगेन देखिए, नागपुर, शिमला, बेंगलोर, कोटा, कोच्चि, भोपाल, इंदौर, जमशेदपुर, सब जगह हालत जो है बहुत खराब है। वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत नाजुक है। और अगर वायु प्रदूषण की इतनी गंभीर स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे स्वास्थ्य को ये कितना नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट प्लीज। एयर पोल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं, आप जानते हैं कि एक प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स होते हैं। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हम उनको कहते हैं जो डायरेक्टली एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर, जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जिस तरह SO2, नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर, ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाते हैं। इनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं दूसरे केमिकल्स के साथ। Pollutants that form in the air as a result of chemical reactions with the other pollutants and gases, जैसे ओजोन, NO2, पैन, स्मॉग। पैन जो है पैराऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है। तो ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होके ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स डेवलप होते हैं और ये अगेन हमारे स्वास्थ्य को तरह तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और न केवल आप देखें कि अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो ये उद्योग और वाहन के अलावा इंडोर में भी, हमारे घर के अंदर भी एयर पोल्यूशन होता है अलग अलग कारणों से। इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स को सोर्स देंगे, हमारे घर में, हर घर में कुकिंग होती है, उसमें भी पोल्यूशन है क्योंकि उसमें एमिशन होते हैं। कंबसन, पार्टिकल रिसस्पेंशन, पेंट्स, पॉलिश, आप देखें ये पेंट वगैरह जो हम करते हैं, पॉलिश जो करते हैं, इससे वायु प्रदूषण होता है। बहुत बड़ा कारण है एयर कंडीशनिंग, क्लीनिंग। एयर कंडीशनिंग, क्लीनिंग, आप जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन एयर कंडीशनिंग से होता है और ये बहुत बड़ा नुकसान। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन हाउस गैसेस। एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, स्मोकिंग, हीटिंग, बायोलॉजिकल एजेंट्स, दिस इज ऑल सोर्सेज ऑफ इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स। ये इसमें उद्योग के अलावा हमको अपना इंडोर, अपने घर के अंदर भी हमें पोल्यूशन को, वायु पोल्यूशन को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और इसमें इंडोर पोल्यूटेंट्स में आप देखेंगे नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ओजोन, बैक्टीरिया, मोल्ड बाई प्रोडक्ट्स, एंडोटॉक्सिन, ये सब पोल्यूटेंट शामिल हैं जो हमारा अंदर का वातावरण, घर का वातावरण प्रदूषित करते हैं। हम इनसाइड भी सुरक्षित नहीं है। इस आज आवश्यकता है वायु प्रदूषण को कम करने की, ताकि हम घर के अंदर और घर के बाहर दोनों जगह सुरक्षित रहें। परंतु दुर्भाग्य से आज हम दोनों जगह सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट। आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप देखें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, कॉमर्शियल एरिया में, एंड मोबाइल इज आल्सो ए मेजर फैक्टर। आजकल मोबाइल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है और इट इज आल्सो कॉजिंग पोल्यूशन। एंड अर्बन, रीजनल, एग्रीकल्चरल, नेचुरल, दिस इज ऑल आउटडोर एयर पोल्यूटेंट्स। एंड इन पोल्यूटेंट्स में सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर एंड वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन, ये सब सम्मिलित हैं। ये सब प्रदूषण काज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
और इसी तरह गैसियस, हम एक और श्रेणी है गैसियस पोल्यूटेंट्स। हालांकि मैंने अभी इनके बारे में आपको बताया, जो प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में, इसमें गैसियस पोल्यूटेंट्स अलग से कि नॉक्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स and semi-volatile organic compounds. This is all gaseous pollutants जो हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं और हमारा स्वास्थ्य इन प्रदूषकों की वजह से प्रभावित होता है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए, ये सोर्सेस एंड टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स डायरेक्ट एमिशंस, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में मिलते हैं और ये एटमॉस्फेयर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से SO3, HNO3, H2SO4, H2O2, ओजोन, पैन्स, ये प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स डेवलप होते हैं। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये एक चेन रिएक्शन होता है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को डेवलप करते हैं और ये अलग अलग तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। व्हीकल से जो आपको दिखाया है कि देखिए, ये व्हीकल से और नेचर से किस तरह, ये धुएं से, इंडस्ट्री से किस तरह ये आपस में रिएक्ट करके और किस तरह ये अलग अलग तरह के कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक केमिकल एटमॉस्फेयर में जनरेट होते हैं और वो पोल्यूशन काज करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ट्रीज एंड वाटर। आप देखें कि किस तरह, क्या ये एयर पोल्यूशन से न केवल मानव जीवन को खतरा है, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारे पेड़ पौधे और ये हमारा पानी भी एयर पोल्यूशन की वजह से प्रभावित होता है। इसमें देखिए, आपको बताया है कि एमिशंस, देखिए ये SO2 और ये ऊपर अभी और आगे SO2 और नॉक्स मिलके किस तरह एसिड बनाते हैं और वो जो एसिड रेन होती है, और वो एसिड रेन की वजह से अगर हमने इस पे कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले दिनों में हमारा जीवन मुश्किल में पड़ जाएगा। आप देखें कि पेड़ पौधे किस तरह, इस फोटो से आपको समझ में आएगा कि पत्तियां किस तरह, पेड़ किस तरह मर जाते हैं इन पोल्यूटेंट से। अगर ये एयर पोल्यूशन एक लिमिट से ज्यादा होता है तो ये बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव हमारे वातावरण पर डालता है और वातावरण में दुष्प्रभाव होने की वजह से न केवल ह्यूमन हेल्थ बल्कि हमारे पेड़ पौधे भी उससे प्रभावित होते हैं, हमारी वाटर बॉडीज, हमारे जलाशय, वो भी उससे प्रभावित होते हैं। तो इसको हमें रोकने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, ये सोर्स एमिशन और किस तरह केमिकल रिएक्शन होके किस तरह दूसरे केमिकल्स, कॉम्प्लिकेटेड और केमिकल्स बन रहे हैं एटमॉस्फेयर में और हमारे एटमॉस्फेयर को प्रदूषित करते हैं। ये जो हमारे पेट्रोल और डीजल के जलने से जो एमिशन होते हैं, उन एमिशन के बाद उनके जो रिएक्शन होते हैं एटमॉस्फेयर में, और उन रिएक्शन से और बड़े कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स केमिकल जनरेट होते हैं जिसको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स कहते हैं। और वो पोल्यूटेंट्स हमारे वायुमंडल को, हमारे वातावरण को विषाक्त करते हैं, टॉक्सिक करते हैं। और आज जो दुनिया में बीमारियां बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, उन सब की वजह ये प्रदूषक हैं। ये वायु प्रदूषण के ये सारे जो पोल्यूटेंट्स हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं, ये पोल्यूटेंट्स सब तरह के प्रॉब्लम आज हमारे सामने पोस्ट कर रहे हैं। हम मानव जीवन के ऊपर, हमारे जानवरों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, सब पर इनका असर होता है। तो वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत घातक प्रक्रिया है और इसको हमें रोकने की आवश्यकता है।
इस समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। एसिड डिपोजिशन, मैंने आपको बताया था एसिड रेन। आप देखें एसिड फॉग, नाइट्रिक एसिड, देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड मिलने के बाद दिस ट्रांसफॉर्मेशन टू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, इन दोनों की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक एसिड बनते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड का वातावरण में डिपोजिशन होता है और इसमें wind borne ammonia gas and some soil particles partially neutralize acids and forms disulfate। ये जो क्रियाएं होती हैं कुछ तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, पर इसका मैक्सिमम पोर्शन वेट एसिड डिपोजिशन होता है और ये बूंदों के रूप में H2SO4 HNO3 बरसात के पानी में मिक्स होकर और ये एसिड रेन करता है। ये जो एसिड रेन जिसको कहते हैं, ये हमारे बरसात के पानी के साथ मिलके ये H2SO4 HNO3 जमीन में आते हैं। आप समझ सकते हैं कि एसिड कितना घातक है। न केवल मानव जीवन, अगर एसिड रेन अगर बढ़ती जाएंगी, अगर बरसात के पानी में एसिड मिला हुआ होगा और एसिड बरसात के साथ अगर बारिश में आएगा, तो क्या हमारे पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं? क्या हमारी जैव विविधता, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारे जीवन के संसाधन हैं, वो क्या रह पाएंगे? क्या हमारा पीने का पानी बच पाएगा? क्या हम इस कंडीशन में हमारा सर्वाइवल संभव है क्या? ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नेक्स्ट प्लीज। देखिए एयर पोल्यूटेंट्स हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको बताना चाहता हूं डिटेल में, जो समझना चाहते हैं कि एयर पोल्यूटेंट्स दो तरह के पर्टिकुलेट मैटर, जिसमें धुआं और धूल के कण वगैरह होते हैं, ये मेजर कारण है पोल्यूशन का, एयर पोल्यूशन का। मेजर सोर्सेस आर एब्रेडेड सॉइल, रोड। आज जो ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, रोड डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, घर मकान बनाने में, सड़क बनाने में, इसमें ये जो धूल उड़ती है और ये जो इंडस्ट्री का धुआं होता है, तो ये पर्टिकुलेट मैटर को कोर्स पीएम 2.5 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पूरी तरह प्रभावित करता है, आपके श्वसन तंत्र को बुरी तरह प्रभावित करता है। ये जो पीएम है, आज हम पीएम दो तरह से इसको मॉनिटर करते हैं। पीएम 2.5 जो छोटे कण हैं वायु में पर्टिकुलेट मैटर के, दैट इज 2.5 एंड लेस, तो ये पीएम 2.5 होता है। और जो 10 माइक्रोमीटर से और प्लस होते हैं, जो बड़े पार्टिकल होते हैं, उनको 10 पीएम कहते हैं। तो ये जो हम रेगुलेट करती हैं, हमारे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और दूसरी एनवायरमेंटल एजेंसीज मॉनिटर करती हैं, तो वो पीएम 2.5 और पीएम 10 मॉनिटर करती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रदूषण का कितना स्तर है। और जैसा मैंने आपको बताया कि श्वसन तंत्र को, और ये जो आज अस्थमा, खांसी, सर्दी, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, ये इस वजह से होते हैं। इसी तरह न केवल ये 2.5 पीएम बल्कि फाइन पीएम लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर, ये जो लेस देन 2.5 माइक्रो हैं, ये फर्दर बहुत हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, जो कि ये पेट्रोल डीजल के बर्न होने से ये एमिट होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये पर्टिकुलेट मैटर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषक होता है और हमारे वातावरण को, हमारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। नेक्स्ट प्लीज।
पीएम मैंने बताया आपको, पीएम कोर्स पीएम, पीएम 2.5, पीएम 10, फाइन पीएम, अल्ट्रा फाइन पीएम। अब क्या है, आज की डेट में हमारे पास ये व्यवस्था नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि पीएम 10 और पीएम 2.5 तो हम मॉनिटर कर लेते हैं, उसको एनालाइज कर लेते हैं, पर अल्ट्रा फाइन जो पीएम है, पार्टिकुलेट मैटर, बहुत छोटा साइज जो है, वो तो हम उसको तो हम चेक भी नहीं कर सकते, हमें मालूम ही नहीं है, क्योंकि अभी तक उसका इक्विपमेंट वगैरह हम डेवलप नहीं कर पाए हैं, ताकि हम और जो छोटे सूक्ष्म कण हैं, सूक्ष्मतम कण हैं, उनको भी हम रेगुलेट, तो ये सब आज रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, पर ये हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैंने आपको बताया कि ये नेसोफेरेंजियल ट्रैक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं, और आप देखें कि ये पीएम 2.5, पीएम 10 कई तरीके से हमारे स्वास्थ्य को हानिकारक हैं, और ये में एब्जॉर्ब केमिकल्स एंड इंटेंसिफाई देयर इफेक्ट्स। टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर कॉज करने वाले, इसमें पेस्टिसाइड्स, लेड, आर्सेनिक, रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये सब मिले होते हैं। ये एक अध्ययन के अनुसार 8% इंक्रीज इन लंग कैंसर फॉर ईच 10 माइक्रोग्राम पर क्यूब मीटर इंक्रीज ऑफ पीएम 2.5। अगर इस पीएम 2.5 के इंक्रीज से लंग कैंसर की किस तरह बढ़ता है, ये एक अध्ययन में बताया गया है। एंड यू कैन थिंक ऑफ द बैड इफेक्ट and harmful effect of these pollutants. Next, please. कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर कहा गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसा आप जानते हैं, कलरलेस, ओडोरलेस, टेस्टलेस गैस होती है, और इसको साइलेंट किलर कहते हैं। क्यों? और इसका रीजन होता है, जब ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट कंबसन होता है, जब ये पूरी तरह से कोई चीज बर्न नहीं होती है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है, तो ये एमिट होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, एनर्जी प्रोडक्शन में, रेसिडेंशियल हीटिंग यूनिट्स में एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये कार्बन मोनोऑक्साइड एमिट होती है। नेक्स्ट प्लीज। कार्बन मोनोऑक्साइड फर्दर देखें, ये हमारे न केवल एटमॉस्फेयर में, न केवल इंडस्ट्री में, बल्कि इंडोर पोल्यूटेंट्स के रूप में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इंडोर पोल्यूटेंट्स में भी कार्बन मोनोऑक्साइड, इवन हमारे किचन से, हमेशा हमारे किचन से भी हमें खतरा रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एमिशन का। तो हम देखें कि हमारा अगर आउटसाइड हम सुरक्षित नहीं है, तो इनसाइड भी हमारी सुरक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो इसके लिए हमें हमारी वायु को स्वच्छ रखना जरूरी है, एयर पोल्यूशन को कम से कम करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। अब देखिए, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ओजोन। आपने देखा ना अभी कि ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस की वजह से ओजोन क्रिएट होती है, और ओजोन बहुत हानिकारक है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, जैसा मैंने आपको कहा कि ये रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन से ओजोन प्रोड्यूस होती है, और ये ओजोन व्हीकुलर एमिशन, पावर प्लांट, कंबसन, केमिकल इंडस्ट्रीज, सब जगह सीवियर ENT, ear, nose, throat irritation, eye irritation, interfere with lung function, chronic health effect, irreversible accelerated lung damage, ये सब तरह के हमारे प्रॉब्लम, स्वास्थ्य के जो प्रॉब्लम हैं इससे जुड़े हुए, इन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया है कि ये सारे प्रॉब्लम ओजोन से होते हैं। तो ये एयर जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है ओजोन, ये भी बहुत घातक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट।
again ozone को. It absorbs UV radiation and creates a warm layer of air responsible for the thermal structure of the stratosphere. Ozone present in the troposphere is mainly due to man-made pollution. Higher concentration are found in urban areas. देखिए, हमने एक वर्ड बोला मैन मेड पोल्यूशन. हम खुद ये पोल्यूशन, ये प्रदूषण के हम जिम्मेदार हैं, और इसलिए इसको कहा गया है ये मैन मेड पोल्यूशन है. ओजोन इज फाउंड व्हेन नॉक्स कंबाइंस विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in the presence of sunlight. VOC plus NOx plus sunlight is equal to ozone. तो इस रिएक्शन से, इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से ओजोन क्रिएट होती है, ओजोन फॉर्म होती है, और ओजोन अलग अलग तरीके से हमारे वातावरण को प्रदूषित करती है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, और न केवल हमारे स्वास्थ्य को बल्कि जीव जंतु पेड़ पौधों के लिए भी हानिकारक है. आज जो अस्थमा के प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं वो उसमें ओजोन का बहुत बड़ा हाथ है. नेक्स्ट प्लीज. इसी तरह नॉक्स आप देखें, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में ये जो एयर पोल्यूटेंट्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड is the principal emitted NOx gas from high temperature combustion in air. Acts a catalyst in the reactions that cause the destruction of ozone. Reacts with ozone and tropospheric radicals to help form NO2, ozone, and other secondary pollutants such as peroxyacetyl nitrate. इस तरह ये एयर पोल्यूटेंट नॉक्स जो है उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, देन NO2 is the lesser is also is one of the pollutant of NOx, and ये हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाता है, कई तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है एटमॉस्फेयर में. जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इससे बहुत तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग जैसी चीज क्रिएट होती है, और अलग अलग तरीके से ये हमारे को प्रभावित करते हैं. और ये नॉक्स एक बड़ा रीजन है. देखिए, यूवी सनलाइट प्लस हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू ओजोन, और तरह तरह से हम ये इनके जो आपस के रिएक्शन हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के, ये जटिल रसायनों को जन्म देते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उनको क्रिएट करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. नॉक्स अगेन देखें, नॉक्स हाई टेम्परेचर पे फ्यूल कंबशन होता है हमारे व्हीकलर पोल्यूशन में, और जो ये डीजल, पेट्रोल प्लस इंडस्ट्री, इवन कोल के बर्न करने में ये नॉक्स प्रोड्यूस होती है, और बहुत तरह के प्रॉब्लम हमारे को पल्मोनरी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर होता है नॉक्स से, तो देयर आर प्रॉब्लम ऑफ पल्मोनरी फाइब्रोसिस, एम्फीसीमिया and higher LRI, lower respiratory tract illness in children. इसका आप देखें टॉक्सिक इफेक्ट एट 10 to 30 ppm. इतने लोअर लेवल में भी, इतना लोअर अगर इसकी मात्रा भी अगर वायु में है, तो यह तरह तरह की बीमारियां, नोज एंड आई इरिटेशन, लंग टिश्यू डैमेज, पल्मोनरी एडिमा, ब्रोंकाइटिस, डिफेंस मैकेनिज्म को प्रभावित करता है, निमोनिया इसके कारण होता है, एग्रेवेट एग्जिस्टिंग हार्ट डिसीज. ये सारे प्रॉब्लम नॉक्स की वजह से होते हैं, और इसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है. नेक्स्ट प्लीज. SOx, सल्फर डाइऑक्साइड, इज अ मेजर प्राइमरी पोल्यूटेंट. आपको पहले हम बता चुके हैं, ये SOx और NOx, इनकी वजह से एसिड रेन और HNO3 और H2SO4 गैस और एसिड रेन, तो ये तो एक दुष्प्रभाव, तरीके के अलग अलग दुष्प्रभाव, अलग अलग रूप में ये हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे वातावरण पर ये प्रभाव डालते हैं. ओरिजिनेट्स मोस्टली फ्रॉम कोल फायर्ड पावर प्लांट्स एंड अदर फॉसिल फ्यूल कंबशन. Sulfur dioxide is usually oxidized by ozone and hydrogen peroxide to form sulfur trioxide, a secondary pollutant that is extremely soluble in water. और ये हमारे वाटर को भी प्रदूषित कर रहा है. देखिए,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कितने घातक हैं हमारे लिए, आप इससे समझ सकते हैं. सल्फर ऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर व्हेन कंडेंसेशन ऑकर्स रिजल्ट्स इन ड्रॉपलेट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कॉल्ड एसिड रेन. आप हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह एसिड रेन होती है और किस तरह हम इससे प्रभावित होते हैं. हमारी फसल प्रभावित होती है, हमारी कृषि प्रभावित होती है, हमारे पेड़ पौधे प्रभावित होती है, हमारी जैव विविधता प्रभावित होती है. नेक्स्ट प्लीज. लेड बहुत टॉक्सिक होता है. ये लेड की वजह से आप देखें फ्यूल्स की बर्निंग फ्यूल्स दैट कंटेन लेड. अभी पेट्रोल फेस्ड आउट हो गया है, मार्केट में अनलेडेड पेट्रोल मिलने लग गया है, इसीलिए क्योंकि लेड का एमिशन, लेड का पोल्यूशन बहुत दुष्प्रभाव डालता है. ये हमारा खून इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जिस तरह कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है और ये खून में मिलके एक्यूमुलेट्स इन ब्लड, बोन्स, मसल्स, फैट, डैमेजेस ऑर्गन. इसकी वजह से किडनी, लिवर, ब्रेन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बोन्स ये सब प्रभावित होते हैं. ये हड्डियों की बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये लेड की पॉइजनिंग है. देन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, सीजर्स, मेंटल रिटार्डनेस, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, मेमोरी प्रॉब्लम, मूड चेंज, ये सारे प्रॉब्लम लेड की वजह से होते हैं. हार्ट एंड ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज्ड हार्ट डिसीज, क्रॉनिक एंड सब तरह की पॉइजनिंग इस लेड के कारण होती है. नेक्स्ट प्लीज. मोदी पहुंची जाए हो पूरी तैयारी कर ली थी. आप अच्छी तरह जानते हैं कि पारा, मरकरी किस तरह हानिकारक है, कितना विषैला है और ये कितना हमारे को प्रभावित कर सकता है. जो एलिमेंटल Hg inhaled as a vapor absorbed by lungs, ये वेपर के रूप में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, हमारी वायुमंडल में प्रेजेंट है और ये वेपर के रूप में हमारी श्वसन के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे जो लंग्स हैं वो इसको एब्जॉर्ब करते हैं और वेपराइज्ड मरकरी जो है ये इतना घातक है कि इससे किसी भी तरह की बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे स्वास्थ्य के ऊपर हो सकते हैं. और ये तरीके से, और आजकल हमारे कोल बर्निंग से, इसके सोर्स लिखा हुआ है कोल कंबसन, एक्सीडेंटल स्पिल, माइनिंग, इन सब में ये पारा होता है, पारा निकलता है. पारा का एमिशन वेपर के रूप में होता है और तरह तरह से ये हमारे शरीर को प्रभावित करता है. तो हम देखते हैं कि ये इतना टॉक्सिक, इतना विषैला है कि हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो हमारा शरीर, आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर कितने दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं पारा के रहने से. और ये पारा इज वन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट. नेक्स्ट. डायोक्सिन. आप देखें डायोक्सिन एंड फ्यूरान. मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बताना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अक्सर कॉरपोरेशन में नगर निगम के वर्कर रोड साफ करते हैं और रोड साफ करते हैं और रोज कचरा एक किनारे इकट्ठा कर देते हैं. उस कचरे में पॉलीथीन भी रहता है और वो क्या करते हैं, ये वर्कर, नगर पालिका और नगर निगम के वर्कर उस कचरे में आग लगा देते हैं जिसमें वो पॉलीथीन भी जलने लगता है. तो ये जो क्लोरीनेटेड पॉलीथीन है, इसको लो टेम्परेचर पे जलाना बहुत घातक है. ये हमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है कि हम पॉलीथीन को जलाएं नहीं. पॉलीथीन को अगर हम लो टेम्परेचर में जलाते हैं तो उससे बहुत ही विषैली गैस डायोक्सिन और फ्यूरान निकलती हैं और ये डायोक्सिन और फ्यूरान इतनी विषैली गैस हैं
कि ये इतनी विषैली गैसेस होती हैं जिनकी वजह से जितनी बड़ी से बड़ी और घातक बीमारियां हैं, सारी बीमारियां इन डायऑक्सिन और फ्यूरान की वजह से होती हैं। और ये डायऑक्सिन फ्यूरान का जो ये कैंसर कारक तो है ही, और दूसरी भी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो इन डायऑक्सिन और फ्यूरान की वजह से होती हैं। और इसलिए आप समाज में ये जागरूकता लाना है कि हम पॉलीथीन को बिल्कुल ना जलाएं। पॉलीथीन को लो टेम्परेचर पे ना, पॉलीथीन को अगर हाई टेम्परेचर पे जलाया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पॉलीथीन को 600 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर जलाएं, 800 डिग्री के ऊपर सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री में जो उनकी भट्टियां होती हैं उसमें टेम्परेचर 800 डिग्री और उसके ऊपर जनरेट होता है। अगर वहां पॉलीथीन जलाई जाए तो वो एक ईंधन का काम करती है। अगर पॉलीथीन प्लास्टिक अगर हाई टेम्परेचर पे जलाएं तो वो ईंधन है। इसमें कोयले से 3 गुना ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इससे कैलोरीफिक वैल्यू इसकी लगभग 3 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर 1 किलो हम प्लास्टिक जलाते हैं तो हम 3 किलो कोयला बचाते हैं। तो ये ईंधन हो सकता है, परंतु अगर हम लो टेम्परेचर पे जलाएंगे तो हमारा ये वायु प्रदूषण होगा और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। और हमें समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और ये समय हो गया है। मैं इसके साथ ही आपको सुनने के लिए, पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एंड आई एम थैंकफुल टू मिस्टर सुरम्य बोरा एंड हिज टीम for giving me opportunity to discuss with you, to talk to you, and thank you very much. Sir, thank you. Hello. हाँ जी सर थैंक यू वेरी मच सर, सच ए वंडरफुल सर इंफॉर्मेटिव सेशन सर हमने काफी कुछ क्वेश्चन तो रिसीव किए हैं सोशल मीडिया पे, पर उसमें काफी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका जवाब हमको चालू सेशन में मिल गया है। ऑलरेडी गॉट द आंसर ड्यूरिंग द सेशन सर अभी 2-3 क्वेश्चन है, हम लोग बात करेंगे सर। एक क्वेश्चन सर ऐसा है, अभी भारत में और दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, उसका मुख्य कारण कौन सा है सर? अभी मैंने डिस्कस किया था। देखिए दिल्ली में जो पॉल्यूशन कहा था, मैंने आपको पर्टिकुलर इसमें एक्चुअली में समय कम था, मेरे पास एक स्लाइड थी। मेरे पास अभी आप देखें जो समय कम था तो मैंने बीच में अपना ये लेक्चर रोक दिया। ठीक है। इसमें एक स्लाइड थी जो दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर थी। और दिल्ली में जो ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये पराली जलाने की वजह से आपने देखा होगा दिल्ली में पराली जलती है। ये जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है, ये एग्रीकल्चर वेस्ट। और मैंने चर्चा करी अपने लेक्चर के दौरान स्मोक प्लस फॉग। विंटर में ये समस्या आती है, जब ये ठंड के सीजन में ये समस्या आती है, स्मोक और फॉग मिलके, और इसमें ओजोन का भी हाथ होता है। ये स्मोक डेवलप करते हैं, धुंध डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से ये जो विजिबिलिटी नहीं होती है, कई बार हवाई जहाज को उतरने में मुश्किल होती है। तो दिस इज ऑल जो डेली पॉल्यूशन है, मोस्टली ड्यूरिंग दिस पीरियड, इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन। एंड मोस्टली दैट एयर पॉल्यूशन मेजर रीजन इज, देखिए दिल्ली एयर, ये दिल्ली के बारे में है। Yes, sir. कि दिल्ली के बारे में मैंने बताया हुआ है कि दिल्ली में व्हाट्स पोल्यूटिंग दिल्लीज एयर, ये पूरी डिटेल है। पर चूंकि कभी और मौका मिलेगा तो फिर हम और डिटेल में बात करेंगे। ये दिस वाज माय स्लाइड एंड अभी समय नहीं था, इसलिए हम ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर पाए। यस सर। सर दूसरा एक ऐसा है कि ये चंद्रकांत बख्शी सर का क्वेश्चन है सर, और अभी वो पूछ रहे हैं कि अभी फटाके और पराली जलाने को सबसे बड़ा कारण बताते हैं, उसमें कितना सच है? और हमको लगता है कि फैक्ट्री और बड़ी कंपनियां के कारण भी पॉल्यूशन होता है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। फैक्ट्री और बड़ी
हाँ, भारत सरकार ने एक स्टैंडर्ड बनाया है एमिशन का। क्या है, इंडस्ट्री को भी चलना जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इंडस्ट्री बंद कर दें, इंडस्ट्री को चलना है। पर उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया है कि जो पीएम का स्टैंडर्ड है वो कितना होगा, पीएम 2.5 का क्या स्टैंडर्ड, इसके ऊपर जो होता है तो हम इंडस्ट्री के ऊपर हम चालान करते हैं, इंडस्ट्री को के ऊपर वायलेशन का केस डालते हैं। जब एमिशन नॉर्म्स बढ़ जाते हैं तो इंडस्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है, पर देयर इज अ स्टैंडर्ड कि इसके ऊपर नहीं होना चाहिए पोल्यूशन, जो सुरक्षित लेवल है उसके अंदर रहना चाहिए। तो ही इज वेरी मच राइट। यस सर। सर एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास। सर ये एक लाइट पॉल्यूशन के ऊपर में है, तो ये पूछना चाहते हैं कि काफी जगह में ऐसा सुना है कि जो लाइट पॉल्यूशन है वो ट्रीज और प्लांट अलोंग विद द रोड्स के ऊपर में भी अफेक्ट करता है, तो क्या ये सच है सर? लाइट पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन सर, प्रकाश। लाइट पोल्यूशन, लाइट तो हेल्पफुल है पेड़ पौधों के लिए। अगर सूरज की किरण नहीं होगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा। जी सर। है ना, वो तो प्रकाश जो है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम आता है। लाइट पोल्यूशन जैसी कोई चीज नहीं है, पर हीट से अफेक्ट होते हैं, हीट पोल्यूशन हो सकता है। पर लाइट तो प्रकाश संश्लेषण, आपने नाम सुना होगा, फोटोसिंथेसिस। हाँ सर। फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगी तो हमारी लाइफ नहीं चलेगी, पेड़ पौधे में खाना नहीं बनेगा। ये जो क्लोरोफिल के साथ मिलके कार्बोहाइड्रेट बनता है, CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6, ये आपने, तो ये प्रकाश की वजह से होता है। प्रकाश से प्रदूषण जैसी, उसमें अल्ट्रावायलेट का प्रदूषण हो सकता है, कुछ रेडिएशन हो सकता है एक पोल्यूटेंट के रूप में। पर सामान्य तौर पर हम प्रकाश को प्रदूषण में नहीं मानते, रेडिएशन को प्रदूषण में मानते हैं। जैसे ये शायद ये सर ये पूछना यही चाहते हैं हम लोग, जो मतलब लाइट जो जलाते हैं रात में दिन में, जी हाँ, ये इसी सेंस में पूछना चाहते हैं लाइट पॉल्यूशन का। ये डायरेक्ट पॉल्यूशन तो नहीं है। एंड यूवी रेडिएशन वगैरह जो है ये पॉल्यूटेंट, यूवी रेडिएशन सर, सनलाइट में यूवी रेडिएशन होता है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ये सब और भी मौके मिलेंगे और भी चर्चा करेंगे हम लोग आगे अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर। आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट चुना और बहुत अच्छा दिन चुना डिस्कशन के लिए, तो आई एम थैंकफुल टू यू। नहीं सर, सच आई एम थैंकफुल टू, वेरी मच थैंकफुल टू यू सर, on behalf of Gujarat Science City, Department of Science and Technology. Sir, such a wonderful, nice, informative session, sir, today. So nice presentation, sir. And sir, thank you very much for giving time to Science City and our audience. Sir, thank you all participants for attending the session. Sir, thank you very much, sir. Thank you, sir.